دنیا کے اندر انسان مال کو کماتا ہے، تین طریقے سے استعمال کیا، کھایا ختم کر دیا، پہنا پرانا کر دیا، صدقہ و خیرات کیا، رب کے پاس بھیج دیا، یہ بھی ضائع اور برباد نہ ہوگا بلکہ رب کی عدالت میں پہنچے گا، اس کی نیکیاں وہاں استقبال کر رہی ہوگی۔ یہ تین طریقے سے دنیا کے اندر جو انسان مال کو استعمال کیا وہی اس کا مال ہے، باقی جو مال بچ گیا وہ اس کا مال نہیں ہے، جو مال بچ گیا ہے وہ اس کے ورثہ کا مال ہے، اس کا مال ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر اس حدیث کے مطابق اس دنیا کے اندر ہم اپنی زندگی گزارے تو یاد رکھو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج جب ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے جو چھوٹی چھوٹی قیامت کی نشانیاں تھی، آج سے 1400 سال پہلے جو بتلا دی تھی، جب اپنے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، میری امتیوں میں پایا جائے گا وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وہ دین کا سودا کر ڈالیں گے، دنیا کے اندر پراپرٹی مل جائے، اچھا گھر مل جائے، اچھی گاڑیاں مل جائے، کیسے بھی آئے، کس طریقے سے آئے، دین بیچنا پڑے، ایمان بیچنا پڑے، رب کو ناراض کرنا پڑے، اللہ کے رسول کی مخالفت کرنی پڑے، بس دنیا کی چیزیں ہمیں مل جائے، یہ چیز آج لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے، یعنی دنیا کی مال و دولت کے پیچھے وہ اپنے دین کو بھی بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوازوں نے اس دین کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی تمام چیزوں کو قربان کر دیا تھا۔ وہ چاہتے تھے ہمیں دین مل جائے، اسلام مل جائے، ایمان مل جائے، بھلے ہی دنیا کے تمام چیزیں کیوں نہ لٹ جائے، انہوں نے اس اسلام کے خاطر دنیا کی چیزوں کو بھی قربان کر دیا۔ ان کا ٹارگٹ یہی ہوتا تھا اسلام ہمیں مل جائے، رب راضی ہو جائے، دنیا ہمیں ملے یا نہ ملے، اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوا تھا۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، آپ کو ایسے ایسے واقعات مل جائیں گے، وہ واقعات اگر پڑھو گے تو یقیناً آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے گا کہ وہ نبی کے صحابہ تھے جنہوں نے دین کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی تمام چیزوں کو قربان کر دیا تھا۔ نام ہے حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمانے جاہلیت میں ان کا نام عبد العزیٰ تھا۔ یہ ابھی چھوٹی سی عمر میں تھے کہ ان کا باپ انتقال کر جاتا ہے، اپنی چچا کی پرورش میں تھے، چچا اپنے بھتیجے کی پرورش کیا کرتا تھا، بکریوں کو چرایا کرتے تھے۔ جوانی کی دہلیز پر جب قدم رکھتے ہیں ان کے کانوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا، توحید کے بارے میں پتہ چلا، دل کے اندر جذبہ پیدا ہوا، اسلام کو قبول کرتے ہیں، چچا کے پاس جاتے ہیں، میرے چچا میں جا رہا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسلام قبول کروں گا، اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاؤں گا۔ چچا کہتا ہے میرے بھتیجے جا جا، لیکن تجھے دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر کے جانا پڑے گا، دنیا کی پراپرٹی تجھے ملنے والی نہیں ہے، یہ میری کمائی کی ہے۔ بھتیجا کہتا ہے میرے چچا اگر اسلام کے راستے میں یہ چیزیں رکاوٹ بن رہی ہے، یہ دنیا کی چیزیں تمہیں مبارک ہو۔ بھتیجا رج جا رہا ہے، چچا کہتا ہے میرے بھتیجے رک جا، تیرے جسم پر جو چھوٹا سا کپڑا پڑا ہوا ہے، شرمگاہ کو چھپائے ہوئے ہے، وہ کپڑا بھی اتار دے، یہ میری کمائی کا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میرے چچا اگر یہ کپڑا بھی اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، یہ کپڑا بھی تمہیں مبارک ہو۔ ننگے کی حالت میں ہے، ماں کے گھر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ماں نے ایک چادر دیا، چادر کو آدھا لپیٹ کر کے آدھا اوڑھ کر کے نبی کے دربار میں پہنچتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ غزوہ تبوک کی رات جب وہ جنگ کے لیے نکلے، راستے میں وفات کر جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے لیے اپنے ہاتھ سے قبر کے اندر دفن کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں قبر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ساتھی کو دفن کر رہے ہیں تو وہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کاش آج عبداللہ کی جگہ میں ہوتا، میری موت ہو گئی ہوتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے مجھے قبر کے اندر دفن کرتے تو میرے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہوتی۔ یہ نبی کے وہ صحابہ تھے جنہوں نے دین کو
अर्श पर बैठ करके रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन का सर्टिफिकेट दे दिया था इन्हीं सहाबा के लिए जिन्होंने इस दुनिया के अंदर दीन के लिए दुनिया की तमाम चीजों को कुर्बान कर दिया था। उनका यही टारगेट होता था, रब राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, दीन मिल जाए, इस्लाम मिल जाए, दुनिया की चीजें हमें मिले या ना मिले, यही चीज हमारे अंदर भी पैदा करने की जरूरत है। मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हालात जिंदगी को उठा करके देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत जिब्रील को भेज करके कहता है, जाओ मेरे नबी से कह दो अगर वो चाहते हैं तो मैं उनके लिए वादी बतहा को सोना बना दूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये अल्फाज सुनते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, ला या रब्बी वलाकिन अस्बहु यौमन व अजू यौमन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, नहीं मेरे रब, मैं ये नहीं चाहता कि दुनिया के अंदर मालदारी में अपनी जिंदगी गुजारूं, मैं ये चाहता हूं कि एक दिन भूखा रहूं तो एक दिन शिकमशेर हो जाऊं। जब मैं भूखा रहूंगा फैदा जूत तज़र्रातु इलैका व ज़करतुका, जब मैं भूखा रहूंगा तेरे दरबार में आऊंगा, तेरा जिक्र करूंगा, रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, वैदा शबीतु शकरतुका व हमिदतुका, और जब मैं शिकमशेर हो जाऊंगा फिर भी तेरे दरबार में आऊंगा, तेरा शुक्र अदा करूंगा, तेरी तारीफ बयान करूंगा। ये रिवायत बतला रही है कि नबी को इख्तियार दिए जाने के बावजूद भी नबी ने दुनिया की प्रॉपर्टी को ठुकरा दिया था, क्योंकि नबी को मालूम है ये दुनिया की प्रॉपर्टी क़यामत के दिन कामयाबी की दलील नहीं है, ये दुनिया की मानो दौलत ये कामयाबी की दलील नहीं है। कामयाबी वो है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आले इमरान के अंदर जिक्र कर दिया, फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो जहन्नम के अज़ाब से बचा लिया गया, जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया गया, वही इंसान कामयाब हो गया, वही इंसान कामयाब हो गया जो क़यामत के दिन जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया गया और जहन्नम के अज़ाब से बचा लिया गया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस दुनिया से दिल ना लगाया, दुनिया की मानो दौलत को उन्होंने भी ठुकरा दिया। क्यों? इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम था ये दुनिया की प्रॉपर्टी मिल जाने के बाद अगर इंसान ने सही तरीके से दुनिया के अंदर इस्तेमाल न किया तो ये इंसान को क़यामत के दिन घाटे में उठाएगी। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, चांदनी रात है, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे था, नबी आगे चल रहे थे, जब नबी ने मुझे देखा कहा आए अबू ज़र इधर आओ। जब मैं नबी के पास गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नल मुक़्तिरीना हुमुल मुक़ल्लूना यौमल क़ियामह। मेरे साथी सुन ले, दुनिया के अंदर जिसने सबसे ज्यादा माल कमाया क़यामत के दिन सबसे ज्यादा घाटा उठाने वाला होगा, फकीरों के शकल में होगा, मगर वो इंसान जिसने अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च किया, जिसने रब की रज़ा के खातिर दुनिया के अंदर माल को खर्च किया, दाएं में खर्च किया, बाएं में खर्च किया, रात की तारीकी में भी खर्च किया, दिन के उजाले में खर्च किया, वो इंसान घाटा उठाने वालों में से नहीं होगा। घाटा वो उठाएगा जिसने माल को जमा किया और जमा करके बैंक बैलेंस बनाता रहा, रब के रास्ते में खर्च ना किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक ऐसा इंसान क़यामत के दिन सबसे ज्यादा घाटा उठाने वाला और गरीबों की शक्ल में, फकीरों की शक्ल में होगा। जो इंसान माल को कमाया लेकिन उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च ना किया, वो अपने माल को जमा करता रहा, रब के रज़ा के खातिर खर्च ना किया, वो इंसान सबसे ज्यादा घाटा उठाने वालों में से होगा। मेरे भाइयों, ये दुनिया की प्रॉपर्टी, दुनिया की माल इतनी खतरनाक चीज है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी माल और दौलत के ताल्लुक से कहा था कि मैं अपनी उम्मत के लिए सबसे ज्यादा खतरा दुनिया की माल और दौलत के ताल्लुक से महसूस कर रहा हूं। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, रावी हदीस हज़रत अमर बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। हज़रत अमर बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी ने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब बहरैन की तरफ जिज़िया वसूल करने के लिए भेजते हैं
अंसारी सहाबा को पता चलता है, वो नमाज फजर में हाजिर होते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा करते हैं। नबी ने अपने अंसारी सहाबा के चेहरे को देखा, मुस्कुराने लगे और कहा, अरे मेरे साथियों, क्या तुम्हें अबू उबैदा के बारे में पता है? ये भी पता होगा कि जो माल लेकर के आए हैं वो माल लोगों के दरमियान तकसीम होने वाला है। सहाबा कहते हैं, हाँ अल्लाह के रसूल, ये चीजें हमें पता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जरूर तुम्हें वो चीज मिल जाएगी और तुम खुश हो जाओगे जिस उम्मीद के साथ तुम मस्जिद में हाजिर हुए हो। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, फवल्लाहि मल फक़्र अख्शा अलैकुम वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसत अलैकुम दुनिया कमा बुसितत अला मन काना क़ब्लकुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह की कसम, ये फक़्र फाका मुहताजगी वो चीज नहीं है जो मैं अपनी उम्मत के लिए सबसे ज्यादा खतरा महसूस कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपनी उम्मत के लिए जिस चीज का सबसे ज्यादा खतरा महसूस कर रहा हूँ वो दुनिया की मालो दौलत है कि मेरी उम्मत के ऊपर भी अल्लाह दुनिया को कुशादा कर देगा, दुनिया की मालो दौलत को कुशादा कर देगा, तो मेरी उम्मत भी अल्लाह को ऐसे भूल जाएगी जैसे कि पिछली उम्मतियों पर जब रब ने मानो दौलत को कुशादा कर दिया था, दुनिया को कुशादा कर दिया था, जब लोगों के पास मानो दौलत आने लगा तो लोग अल्लाह को भूल गए थे। मुझे खतरा है इसी चीज का कि मेरी उम्मत के ऊपर जब रब दुनिया को कुशादा कर देगा, मेरी उम्मत अल्लाह को भूल जाएगी जैसे कि पिछले लोग अल्लाह को भूल गए थे, दुनिया को पाने के चक्कर में रब को भूल गए थे, ऐसे मेरी उम्मत भी भूल जाएगी, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको भूल जाएगा। ये रिवायत बतला रही है कि दुनिया की मालदारी को सोच करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए सबसे ज्यादा खतरा महसूस किया था, क्योंकि इंसान के पास जब माल आने लगता है, दुनिया कुशादा हो जाती है, तो फिर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना उस इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है, वो रब को भूल बैठता है। यही चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए सबसे ज्यादा खतरा महसूस किया था। और ये दुनिया की प्रॉपर्टी ही वो चीज है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदे के दीन के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बतलाया था। जैसा कि सुनन तिरमिजी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मादी बानी जाहिआनी उरसिला फी गनमी बिअफसद लहा मिन हिर्स रजुल अलल माल वशर्फ लिदीनिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि दो खूंखार भूखे भेड़ियों को बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिया जाए, वो उतना खतरनाक साबित नहीं होंगे जितना कि इंसान के दिल के अंदर जब माल की लालच पैदा हो जाती है, ओहदा और मनसब की हिर्स पैदा हो जाती है, जितना ये दोनों चीजें इंसान के दीन के लिए खतरनाक साबित होते हैं, उतना दो खूंखार भूखे भेड़िए बकरियों के लिए खूंखार साबित नहीं होंगे जितना कि इंसान के दिल के अंदर जब माल की लालच और ओहदा और मनसब की हिर्स पैदा हो जाती है। ये दोनों चीजें जितना इंसान के दीन के लिए खतरनाक साबित है, उतना ये दो खूंखार भूखे भेड़िए बकरियों के लिए खतरनाक साबित नहीं है। आप देखिए और सोचिए कि एक इंसान के अंदर जब माल की हिर्स पैदा होती है तो वो सोचता है माल आना चाहिए, कहीं से भी आए, कैसे भी आए, उसे इससे कोई मतलब नहीं है, माल आना चाहिए, हराम तरीके से हो, हलाल तरीके से हो, उसको इसकी कोई परवाह नहीं होती है। सूद का पैसा हो, रिश्वत का पैसा हो, लोन का पैसा हो, कैसे भी हो, वो पैसे को आना चाहिए, दुनिया की जिंदगी ऐशो इशरत में होनी चाहिए। दीन जा रहा है, ईमान खतरे में है, रब नाराज हो रहा है, उसे इससे कोई मतलब नहीं है। और दूसरी चीज ओहदा और मनसब की लालच भी जब इंसान के अंदर पैदा हो जाती है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। आप देखते होंगे वोट के दौर में किस तरीके से लोग जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया, जिन्होंने कलमा पढ़ा, वो मज़ारों पर